بیماریاں بہت ہیں اور بیماریوں کے علاج بھی بہت ہیں، اور ماشاءاللہ معالجین ہیں، ہر ایک کا اپنا طریقہ کار ہے اور ماشاءاللہ وہ علاج معالجہ کرتے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، مجھے امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم، اس کی عنایت، خواتین کا خواتین کا زیور ہے، خواتین کا حسن ہے، مرد حضرات کا حسن ہے، یہ جو بال ہیں سر پر بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ اگر سر پر بال نہ ہو تو یقیناً بڑی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، اور بہت سے بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو دیکھا ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ بال جب دوسروں کے دیکھتے ہیں کہ ان کے لمبے لمبے گھنے بال ہیں، کالے سیاہ بال ہیں، اور مائیں دیکھتی ہیں ابھی تو بچی کی شادی ہی نہیں ہوئی، بچی کے بال ہی سفید ہو چکے ہیں، اور یہاں تک کہ اب تو یہ صورتحال ہے کہ بچوں کی بھی نوجوانوں کے بھی بال جو ہے وہ سفید ہو چکے ہیں، ان کے بال جو ہے وہ گرنا شروع ہو چکے ہیں۔ اب اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ناظرین کرام، اس کی وجوہات بہت زیادہ ہیں۔ اس کی وجوہات اگر یوکے یورپ کے معاشرے کے اندر تلاش کرتے ہیں ہم، اور یہاں کے ماحول میں تلاش کرتے ہیں، تو یہاں پر ناظرین کرام سب سے اہم بات ہماری ہیلتھی خوراک نہیں ہے۔ ہم غذاؤں کے اندر ایسی غذائیں استعمال نہیں کرتے جو ہماری بالوں کی گروتھ میں جو ہے وہ اضافہ کرے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں ناظرین کرام، یہ بہت سے لوگ ہیں، ہمارے نوجوان کھاتے کیا ہیں؟ نوجوان پیزا کھاتے ہیں، برگر کھاتے ہیں، آلو کھاتے ہیں، تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کو ہضم کرنے کے لیے کولڈ ڈرنک پیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یار ہمارے بال گر رہے ہیں، کچھ بتائیں۔ اب بالوں کے لیے وہ دنیا جہان کی جو ڈبوں کے اندر بڑی خوبصورت طریقے سے پیک کی ہوئی اشیاء ہوتی ہیں، اس پر وہ مختلف انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں کہ سب باغ دکھائے ہوتے ہیں، اس کو پڑھ کر جو ہے بڑے خوش ہو جاتے ہیں، بس ہمارے بال جو ہے وہ جو ہے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، یقیناً یہ دنیا جو ہے یہاں پر بہت سے لوگ اپنا اپنا نظام چلانے کے لیے مختلف حربے اور مختلف ہیلے کرتے ہیں، لیکن ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی لگائی ہوئی ہے، کس روزی چلتی رہتی ہے لوگوں کی، لیکن ناظرین کرام اگر ہم نیچرل طریقہ علاج کی طرف آتے ہیں تو ماشاءاللہ ایسی بہت سی غذائیں ہیں، ایسی بہت سی ماشاءاللہ آپ کے کچن کے اندر اجزاء موجود ہیں جن کو استعمال کر کے ماشاءاللہ آپ اپنے بالوں کی گروتھ کر سکتے ہیں۔ بالوں کے گرنا، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں خشکی کا پیدا ہونا، گنجے پن کا ہونا، کیونکہ اکثر حضرات جو ہے کئی سے پروگرام چل رہے ہیں اور مجھے کافی اس کے حوالے سے سوالات آتے رہے، تو سوچا کہ چلیں اس حوالے سے بھی آپ حضرات کی اس خواہش کو بھی پورا کر لیں کہ آپ حضرات کو ایسے علاج تجویز کر دیتا ہوں کہ جس کی بدولت انشاءاللہ العزیز، اور میری عادت ہے کہ میں اپنے جو ہے اپنے پاس نسخے نہیں رکھتا بلکہ میں بتلا دیتا ہوں۔ یقین جانیے کہ ہمیں اپنے اساتذہ سے، یہ پرانے لوگوں سے نسخے حاصل کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا، لیکن دور حاضر کے اندر ماشاءاللہ اب ماشاءاللہ میری تو عادت یہ ہے جو میرے پاس ہے تو میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو اس سے فوائد حاصل، تو الحمدللہ بہت سے ایسے نسخے ہیں جس کو ماشاءاللہ یوکے یورپ کے لوگوں نے استعمال کیا، بزرگوں نے استعمال کیے، جوانوں نے استعمال کیے، ماشاءاللہ وہ نسخے، اور ماشاءاللہ صحت مند زندگی پا رہے ہیں۔ لیکن ناظرین، صحت مند زندگی حاصل ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر حسن بھی نہ ہو ظاہری طور پر تو یقیناً ناظرین کرام بہت سے لوگ مختلف احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، تو بہرحال احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا۔ اب اگر آپ ماشاءاللہ انڈر 40 ہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کے بالوں کی گروتھ ہوگی، اور یہ مت سمجھیں کہ جو 40 ابو ہیں ان کی نہیں ہوگی، نہیں ان کی بھی ہوگی، لیکن ان سے جو ہے اس کا ٹائم پیریڈ تھوڑا سا زیادہ ہوگا بنسبت جوانوں کے۔ ظاہری بات ہے جوان انڈر 40 ہیں، اس ملک کے اندر تو 35 اب یہاں تو امیون سسٹم ہی ڈاؤن ہو جاتا ہے کیونکہ موسم کے بڑے اثرات ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو وٹامن ڈی ہے نا، یہ بہت ضروری ہے، اور وٹامن ڈی کی کمی یہاں سرد موسم ہوتا ہے، اور تو اب آنے والے جو موسم ہے اس میں سردیوں میں اکثر لوگوں کے بال بہت زیادہ ٹوٹتے ہیں، بال بہت زیادہ گرتے ہیں، کنگھی کرتے ہیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ کنگھی کرنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہمیں آج تک، بس دیکھا کہ امی کنگھی کرتی تھی، بس ان کو دیکھا دیکھی میں کنگھی شروع کر دی۔ بھائی کنگھی کا طریقہ کیا ہے کہ بال نہ ٹوٹے؟ اب دیکھیں نارمل جو لکھا گیا ہے کتب کے اندر کہ بھائی ایک نارمل جو خاتون ہے ان کے سر کے بال جو ہے، یا لڑکیاں ہیں ان کے سر کے بال جو ہے تقریباً 40 سے 50 یا 40 سے 45 کے ابو جو ہے نا وہ بال جو ہے وہ گرتے ہیں نارمل، لیکن اگر اس سے زیادہ بال گر رہے ہیں، بعض لوگ ہیں، بعض خواتین ہیں کہ کنگھی کرتی ہیں تو سارے کے سارے بال جو ہے کنگھی کے اندر۔ اچھا، ایک بات تو یہ کہ موسم کی وجہ سے اثرات ہوتے ہیں، سردی زیادہ ہو جائے تو اب سروں پر ہمارے کیا، جس طرح میں نے پچھلے پروگرام
کے तलवों पर तेल लगाने का ज़िक्र किया था। इसी तरह अब यूके यूरोप के माहौल के अंदर जो हमारी बच्चियाँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ सर पर तेल लगाना पसंद नहीं करती। अब जब सर पर तेल लगाना पसंद नहीं करती, तो चाहती ये है कि उनके बाल भी सलामत रहें। तो ऐसा कोई हाँ, और फिर क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं? शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, और शैम्पू भी कौन से? सब आर्टिफ़िशियल है। और अगर उन चीज़ों को पुराने ज़माने के अंदर माएँ जो है कपड़े धोने के साबुन से वो धोया करती थी, यानी कि अब सर धोया करती काले साबुन से, या 101 साबुन हुआ करता था, उससे उससे जो है सर धोया करती थी। लेकिन याद रखिए नाज़रीन किराम, वो भी उसमें भी कास्टिक होता है, वो भी नुकसानदेह होता है। लेकिन बहरहाल ज़िक्र करने का मकसद ये है कि वो लोग ज़्यादा उस ज़माने के अंदर ज़्यादा चीज़ें जो है वो आर्टिफ़िशियल नहीं होती थी। रेठे से करते थे। रेठा जो है बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। रेठे के छिलके जो है ये जो पुरानी माएँ वो जानती हैं। लेकिन अब आप जो कहेंगे कि यूके यूरोप के अंदर, मैंने आपको मालूम है कि आज कोई ऐसा नुस्खा नहीं बताया कि ऐसा नाम जो जिसका नाम पहले याद करना फिर उस नुस्खे की तलाश करना वो आपके लिए मुश्किल हो जाए। नहीं नाज़रीन किराम, मैं आज आपको इंशाअल्लाह ऐसे नुस्खे बताऊँगा कि जिससे इंशाअल्लाह आपके बालों की ग्रोथ होगी और आपके बाल गिरना बंद होंगे। फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं बालों के जो सफ़ेदी के ऊपर इंशाअल्लाह उसके हवाले से बालों की स्याही के बालों क्यों जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं उस इंशाअल्लाह प्रोग्राम नाज़रीन किराम, अब नुस्खा नोट कर लीजिए, ख़ास तौर पर वो लोग जिनके सर के बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। अब करनी और कंघी करने का तरीका क्या है? पहले तो ये ज़हन में रखें कंघी करने का तरीका क्या है? कंघी करने का तरीका ये है, ख़वातीन हमेशा ये तो नॉर्मल और बड़ी जो उम्र की ख़वातीन है वो जानती हैं, पहले अपने बालों को जो है सारी बातें सोना है, जागना है, उठना है, बैठना है, अब उसमें जो है बाल जो है वो बड़े बाल हैं तो उसको सँभालना भी बड़ी एहतियात होती है। अब क्या है कि उसके अंदर बालों को पहले उलझे हुए बालों को तेल लगाकर उसको जो है सुलझाएँ। अब हमारे यहाँ क्या करते हैं कि खुश्क बाल होते हैं, कंघी मार-मार के जो है ये बुरश मार-मार के उसको बालों को साथ तोड़ देते हैं। अब जब ज़ाहिरी बात है किसने की, अब ज़ाहिरी बात है आपके सर के बाल हैं, बाल बिल्कुल बारीक होते हैं और उसकी जड़ जो है वो इतनी, अब यहाँ पर हम गर्म पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, गर्म पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, इसके अलावा हम ये सर पर खुश्की पैदा हो जाती है, अब वो बाल की जड़ें मजबूत नहीं होती। अब ब्रश भी बहुत ज़ोर-ज़ोर का खींच-खींच के जो बालों को उलझे हुए बालों को सुलझाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ जो है वो कहते हैं कि बस औक़ात बाद लोग जो है ना बात को चाहते हैं सुलझाते नहीं हैं। तो उसमें ज़हन में रखें कि इसी तरह बालों का भी सिलसिला है। बाद लोग जो है ना सुलझाने के चक्कर में उसको और भी उलझा देते हैं। तो उससे बाल पे और ज़्यादा जो है बाल टूट जाते हैं। तो अब इसमें ध्यान में रखें कि आपने क्या कौन से नुस्खे हैं वो इस्तेमाल करने के जिसकी वजह से इंशाअल्लाह आपके बाल टूटेंगे भी नहीं और बाल झड़ेंगे भी नहीं और इंशाअल्लाह बालों की जड़ें भी मजबूत होंगी। पहले आप जानते हैं यूके यूरोप के अंदर मैंने एक तेल बताया जो अक्सर में जो बात की उसमें ज़िक्र करते हूँ, वो ये है कि तेल मेथी ज़ैतून के तेल के अंदर मैंने ज़िक्र किया था कि आप मेथी दाने को रात को गीला कर लें और सुबह जो है उसको यानी कि इतना पानी गीला कर लें कि वो पानी सुबह उठे तो देखें तो दाने सारे, और जब सुबह जो है उस दाने को किसी ट्रे वगैरह में डालकर किसी साए में पर रख दें और उसके ऊपर कोई ऊपर कोई टिश्यू वगैरह रख दें ताकि कोई मच्छर वगैरह उस पर कोई चीज़ें ना आएँ। तो उसके ऊपर टिश्यू वगैरह रख दें और उसको 1-2 दिन के बाद देखेंगे तो उसमें मेथी दाने की ग्रोथ हो जाएगी। यानी छोटी-छोटी उसमें कॉम्पाउंड्स निकल जाएँगे। जब निकल जाए तो आप क्या करेंगी, कुछ दिनों में दाने जो है ये ड्राई भी हो जाएँगे। हमने साए में इसको ड्राई करना है, धूप में तो यहाँ वैसे ही नहीं होता है। तो अब क्या करना है कि इस दानों को जब ये सूख जाएँ, इसको जो है आप ज़ैतून के तेल के अंदर डाल दें। इनके मिसाल के तौर पर अब कितनी मिक़दार होनी चाहिए मैं आपको बताता हूँ। 100 ग्राम मेथी दाना और इसी तरीके से आपको है वो 200 ग्राम यानी इस तरीके से आपने इसका यानी कि बस औक़ात अक्सर लोग कहते हैं कि कितना लें इसकी मिक़दार बताएँ तो फिर वो उसमें कन्फ्यूज़न होती है। ध्यान में रखें 100 ग्राम अगर मेथी दाना है तो 200 ग्राम आपका ऑयल हो। फिर 15 दिन के लिए एयर टाइट करके कांच की बोतल के अंदर एयर टाइट करके आप जो है 15 दिन के अंदर रखते हैं और 15 दिन के दरमियान में इसको थोड़ा हिलाते रहें। इस तरीके से 15 दिन के बाद उस तेल को इस्तेमाल करें। ये तेल आपके बालों के झड़ने के लिए, बालों की जड़ों को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा है। वो ख़वातीन ऑफिस वगैरह जब ऑफिस जाती हैं फिर ना इस्तेमाल करें। वो नौजवान जो माशाल्लाह जिनके सर के बाल गिर रहे हैं वो ऑफिस जाते हैं उस वक़्त तेल नहीं लगाना पसंद करते। अब अक्सर किस्म की जेल वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ये जेल वगैरह ये सारी चीज़ें इससे बेहतर चीज़ जो है वो माशाल्लाह एलोवेरा है। एलोवेरा जिसको गंदल कहते हैं वो मुफीद चीज़ है, इसको इस्तेमाल करें। बहरहाल मैंने ये ज़िक्र करने का मकसद ये है कि आप आर्टिफिशियल चीज़ों से अपने आप को
बचाए। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब एक तो ये एक नुस्खा ये है। दूसरा नुस्खा नोट कर लीजिए कि आपने खास तौर पर लोग जिनके सर में सिकरी है या खुश्की है और बहुत ज़्यादा अक्सर लोगों को देखा है कि जिनके भवों में भी खुश्की होती है, चेहरों पे भी दाढ़ी के बालों में इधर भी खुश्की नज़र आती है और यानी हर तरफ खुश्की-खुश्की, यहाँ तक कि उनके कपड़ों में भी कोट वगैरह जो भी पहनते हैं उसमें भी खुश्की-खुश्की नज़र आती है। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन क्या है कि खुश्की को खत्म करने के लिए नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ। दही ले लें आप तकरीबन आधा पाव और उसमें ले लें आप तकरीबन 50 ग्राम सरसों का तेल और इसी तरह 50 ग्राम आप उसमें सॉरी एक अंडा उसमें सॉरी 1 अंडे की सफेदी डाल दें उसमें। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करें और उसको सर पर लगाएँ। ये वीक में 3 दिन करें। एक नुस्खा ये भी है और एक नुस्खा और है, अगर सर की खुश्की को खत्म करने के लिए सबसे बेहतरीन ये कि मेथी दाने को मेथी दाने को रात को गीला कर लें, सुबह उठ के उसको ग्राइंड कर लें। ये पेस्ट बन जाएगा और इसी के अंदर आप जो है ये अरंड का तेल जिसे कहते हैं, जिसे कैस्टर ऑयल कहते हैं, अच्छे किस्म का हो और वो उसके साथ मिला दें और मिलाने के बाद जो है इसके अंदर तो आप जो है यानी कि शहद भी इसमें 1 चम्मच डाल दें और वो जो है सर पर लगाएँ। इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ सर की सिकरी वगैरह दाढ़ी में है या बालों में कहीं भी, तो इंशाअल्लाह ये जो है आपकी सिकरी वगैरह, खुश्की वगैरह ये सब खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह।